I'm Swan Yadav and I have done MTech from IST Sipur in Renewable Energy Department. We are going to discuss uh, electric dipole and its interaction with electric field. This is the topic we are going to discuss now. But this is a very important one because from now we are going to study the real things, material interaction with the electric field. What will happen when electric field interact with the material? It will be porage. Okay, porage means creation of dipole. We'll see the dipole moment per unit volume. Dipole moment per unit volume. That is polarization. Okay, this is vector. So we will first understand what is dipole, and how much it will produce electric field and potential. But we haven't studied yet the potential, but we're quite interested in its electric field. Okay, so first we should know what is electric dipole. What is electric dipole? Understand two. This means we have arrangement of two charges plus q and minus q, and this distance is d. Okay, so this distance is very small, and this arrangement, okay, you see these two equal charges. This is equal charges at very small separation d. And then we are now interested in finding the electric field and nature of the electric field due to this type of configuration. Okay, so we have already studied the electric field produced by point charges. So following that concept, we will study ahead what will be the electric field in a particular point r theta. This is theta and this is r distance. This is this is something we need to find out. So we have two charges, a small distance, and suppose this is middle point and length 2L. Okay. So can you say one term, that is strength? Strength of electric dipole, and it is a vector quantity
and it has very simple meaning and very simple quantity, q into 12. Okay, q into 12. 12 is distance, and this is denoted by p. This is the strength of electric dipole. But to direction, it has direction from negative to positive. Okay. Nothing is magnitude is, you can see the product of this q and 12, and in direction vector quantity from negative to positive. Well, so we will do and appreciate the vector calculation. Let's see how can you entertain the vector analysis on this system. Actually, dipole is nothing but system of the two charges, and it will create the electric field in a space. And we will see how can we calculate this electric field. So question, okay, I give you a question. Here minus 2q, and here plus q and plus q, and so 3 charges plus q plus q. You can assign the name A, B, C, that A, B, and minus 2q. This is minus 2q at C of equilateral triangle. Equilateral triangle. Then what is the dipole moment of system? This is your question. We have discrete charges, and you can consider the length A. Now we need to find the dipole moment of the system. Okay, you select, you can see this, make a dipole moment system minus q, and this is plus q. So dipole moment will be vector quantity in this direction. Again, it has 2q charge, and from another minus q charge, it is 1 minus q and minus q, and this is plus charge, and this minus q and plus q make a dipole moment. So it is vector quantity, so it has direction along this direction, and this angle is 60 degree. Now dipole moment for this system is nothing but q into A, and for this same thing, q into A, and this is the direction. Now net dipole moment. Net dipole moment. Just by vector quantity, vector calculus, we have angle. This is the angle. So net magnetic moment we have qa whole square plus qa whole square plus 2 qa into qa. Angle is 60 degree. Then cos
60 degree. So we have root 3 QA. This is your dipole moment of this system. Okay. And see, when you want to make a system of dipole, then sum of the charges will be 0. Look at this. Sum in a system of dipole. Okay, this is system of dipole. Net charge is 0. हम लोग देख सकते हैं कि जो चार्ज है जो किस तरह से डायपोल मोमेंट सिस्टम बनाता है, और हम डायपोल मोमेंट का वेक्टर का प्रयोग किस तरह करते हैं, और किस तरह से हम लोग नेट डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने दो चार्ज के थ्रू जो सिस्टम बनाया है, जिसे हम डायपोल मोमेंट जो हम निकालना सीख गए हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जानने के लिए. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole. This is ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा. जैसे हमारे पास दो चार्जेज हैं, इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इस पॉइंट को बी देते हैं. यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों का जो डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस वो 2L है. और हम लोग जानते हैं कि डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव पे होता है, और इसका स्ट्रेंथ Q इंटू 2L होगा. इसका जो स्ट्रेंथ है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, वो क्या है, Q इंटू 2L. और ये दिस इज द मिडिल पॉइंट, और ये जो डायरेक्शन है इसे हम y मान लेते हैं, और ये डायरेक्शन को यदि हम x मान लेते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम एक्सियल लाइन भी कह सकते हैं. दिस इज एक्सियल लाइन एंड दिस इज इक्वेटोरियल लाइन. सो हम लोग इस जो अरेंजमेंट है चार्ज के कारण, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोग इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, उसका डायरेक्शन भी जानना चाहते हैं, और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, और उसका डायरेक्शन भी जानना चाह रहे हैं. और जनरल पॉइंट जो हम लेंगे, दिस इज योर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन, हम किसी भी जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानना चाहेंगे. ये हमारी उत्सुकता होगी कि इस पॉइंट पे क्या होगा, हम लोग देखेंगे. और इस पॉइंट जो होगा, हमारी दूरी को कुछ खास जो दूरी है इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे हम लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. और यहां से भी हम यदि किसी पॉइंट को लेते हैं, इसकी भी कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस होगा यहाँ से इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे. ये हमारा मोटिव है. ओके, हम ये पॉइंट जो कंसीडर कर रहे हैं, हम यहां से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है, ये पॉइंट P है. तो हम लोग सुपरपोजिशन लॉ
अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने के लिए, हम लोग देख सकते हैं कि इस चार्ज के कारण, आप इधर देख सकते हैं पॉइंट P, और यहाँ पे जो चार्जेस है हम लोग आगे प्लस Q लिया है। आप इस चेंज कर दें माइनस Q, क्योंकि हम चाहते हैं इसका डायरेक्शन हम इधर दिखाएं। ये लाइन इधर हम ड्रॉ करने पर दिक्कत महसूस करेंगे कि हम लाइन खींच दिए हैं, लाइन ड्रॉ करने का। तो हम लोग यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, ताकि डायपोल का जो डायरेक्शन होगा इस दिशा में होगा, एक्सियल लाइन के डायरेक्शन में होगा। तो आप इसे आप यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तो प्लस माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और ये दूरी मिडिल पॉइंट की ये लेंथ L है, और यहाँ से यहाँ दूरी जो R है। तो जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा E1। ये पॉइंट हम 1 देते हैं, ये पॉइंट 2 देते हैं, और जो 2 होगा इसे अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, वो हम लोग मान लेते हैं E2। Now E1 we have 1 by 4 pi epsilon naught Q। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है। ओके, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L। So we have R minus L का whole square. Okay, in this direction, direction is given. You can say positive I. Now E2, for this, you have to write 1 by 4 pi epsilon naught Q। और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, यहाँ पे L है और ये R है। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं L, और यहाँ से यहाँ जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है R है। तो हमारा ये इस चार्ज Q से इस पॉइंट की दूरी हमारे पास है R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये इस डायरेक्शन में होगा माइनस I। नाउ द रिजल्टेंट electric field is nothing but factor E1 plus electric field, just additions of two vectors. Okay, now we have ये निगेटिव डायरेक्शंस में है, तो ये हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं E2। So, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो है 1 by 4 pi epsilon naught Q R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q 4 pi epsilon naught R प्लस L का होल स्क्वायर। हमारे पास जो Q by 4 pi epsilon naught है, इसे हम कॉमन ले लें, 1 by R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 by R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशंस है कैलकुलेशन के बाद। So we have R minus L का होल स्क्वायर into R प्लस
एल का होल स्क्वायर एंड ये आप एक कंडीशंस ले सकते हैं कि हम लोगों ने आर मच मच ग्रेटर देन एल लिए। ओके, दूरी है जो एल से बहुत बहुत ज्यादा है। देन वी हैव आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सो दिस इज आर स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब एक्सपैंड करेंगे तो निश्चित है कि ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो होगा 2RL इसका और 2RL इसका 4RL। और आप एल को आप इग्नोर कर सकते हैं, आर माइनस एल को आप आर लिख सकते हैं, आर प्लस एल को आप आर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारे पास R4 है। तो हमारे एक्सप्रेशंस जो बच गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस इज एक्चुअल पॉइंट। सो हमारे पास अब 2 इंटू क्यू आप यहां ला सकते हैं। दो 2 इंटू क्यू, आर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, आर क्यू बच जाएगा, ये आर क्यू एंड एल। सो हमारे पास आ गया क्यू इंटू 2L। दिस इज डायपोल स्ट्रेंथ or dipole moment you can say. So we have expressions 1 by 4 pi epsilon naught 2 P by R cube. So this is expression for electric field at axial point. इस डायरेक्शंस जो होगा वो किस डायरेक्शंस में होगा आप बता सकते हैं? नेट कौन ज्यादा लिए हम लोगों ने? हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईवन को ज्यादा माने हैं। इसका मतलब ये जो डायरेक्शंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ईवन की डायरेक्शन की तरफ होगा, यानी इस डायरेक्शंस में होगा, एक्सियल लाइन के डायरेक्शंस में होगा। आप कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस में होगा। आप देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा आर क्यूब के फंक्शंस में है। पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आर स्क्वायर के टर्म में था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो आर क्यूब के फंक्शंस में है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, और इसके बाद हम सब चाह रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पे, जो एक्सियल लाइन पे हमारा आ गया है 1 by 4 pi epsilon naught 2 into dipole moment by R cube, एंड इसका जो डायरेक्शन है इज along dipole moment. Okay, this is minus q and this is plus q and this is middle point L है और L है। हम लोग अब r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल पॉइंट है इस पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, और इस डायरेक्शंस को ये पॉइंट तो नीचे भी ले सकते हैं। देखते हैं इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों सिस्टम के कारण। इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज है तो इसको आप इसमें लाइन को ज्वाइन कर दें और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस।
आप इसे ज्वाइन कर दें इस चार्ज को, और ये जो डायरेक्शन है इसके कारण जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और सिंस ये दोनों बराबर है और ये एंगल बराबर है, लेंथ ये r है, तो लेंथ भी हमारा बराबर है ये r² प्लस l², और ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर मान सकते हैं, r² प्लस l²। रिजल्टेंट जो हमारा होगा इस डायरेक्शन से हम मान लेते हैं थीटा है, और आप इस एंगल को भी थीटा मान सकते हैं। ये थीटा है 90 है, तो हमारा 90 प्लस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये ओके। सो ये हमारा जो डायरेक्शन है थीटा का, हम चाहते हैं कि ये आप इसे E1 मान लें, इसे यदि E2 मान लें, तो हमारे पास जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। इसके r² करेंगे तो हमारे पास होगा r² प्लस l²। देन E2 वी हैव 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शंस अलग अलग है, ये इस डायरेक्शंस में है और ये इस डायरेक्शंस में है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो हम लेंगे, जैसे इस डायरेक्शंस में वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, और इसका यदि हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। वर्टिकल component is going to cancel each other, okay। तो हम लोगों को सिर्फ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम लोग को मिल सकता है, और जो होगा E1 cos थीटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, और ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये थीटा है 90 है, 90 माइनस थीटा है, और ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा थीटा। सो हमारे पास है E2 cos थीटा। इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं दो अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है -QR प्लस Q के कारण हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन से इधर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। ओके, ये पैरेलल है पर अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, सॉरी ये एंटी पैरेलल है। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1, that is nothing but 1/4πε0 Q into r² plus l² cos theta plus 1/4πε0 Q r² x² cos theta। हमारे पास नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया, आप इस दोनों बराबर है
तो आप लिख सकते हैं 2q cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं, दैट इज ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो हमारा जो cos थीटा है आप लिख सकते हैं L बाई बी बाई एच अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हमारे पास आप cos थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2ql 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू r, आप यहाँ पावर हाफ है तो आप लिख सकते हैं 3/2। तो आप 2ql को आप p लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट, सो वी हैव p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं कि l स्क्वायर बहुत ही छोटा है, r इज मच मच ग्रेटर देन l, सो आप r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, आप इसमें ऐड करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा है। आप 1 लाख में 10 जोड़ देते हैं क्या फर्क पड़ेगा, बहुत छोटा है तो उतना ही क्वांटिटी रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2q और आप r स्क्वायर गोइंग टू कैंसिल आउट, वी हैव r क्यूब। तो आप इक्वेटोरियल जो लाइन है कुछ खास दूरी पे यानी खास डिस्टेंस r पे हम देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड p के एंटी पैरेलल है और एक्सियल के आधा है। ओके, पर नेचर सेम है, ये भी r क्यूब के सहारे करेगा। दिस फील्ड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, नेचर दोनों का सेम है। ओके, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकाल लिए हैं और ये जो माइनस प्लस जिसे हम डायपोल कहते हैं इस अरेंजमेंट को, उसके कारण एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कुछ खास दूरी डिस्टेंस r पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। सो आप now we see that the direction of electric field E is opposite to the direction of vector P, that is anti-parallel to the axis of dipole. And its value was half, दे सकते हैं p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है। और ई एक्सियल लाइन पे क्या था हमारे पास, आप एक्सिस एक्सियल लाइन जो है उस पॉइंट पे था 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, and this is at equatorial point. Okay, so this is our result. हम लोगों ने एक खास अरेंजमेंट है जो डायपोल करते हैं उसके द्वारा एक्सियल पॉइंट पे जो मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, उस व्यवस्था जो अरेंजमेंट था बस चार्ज का, उससे हम लोगों ने डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। दिस इज पी डायपोल मोमेंट, ये सब डायपोल स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं। खास एक्सियल लाइन है, सॉरी ये एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल लाइन है। ओके, नाउ क्वेश्चन,
what is the force on dipole of question of dipole moment P placed as shown। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये दूरी ए है और ये डिस्टेंस ए है और यहाँ पे हम लोगों ने डायपोल मोमेंट रख दिया है जिसका डायरेक्शन इस तरह है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स डायपोल पे कितना लग रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इधर है और ये इसकी परपेंडिकुलर पे दो चार्ज रखा हुआ है डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर पे। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पॉइंट पे डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ओके, जो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा जिसका वैल्यू ये है। तो इस चार्ज पे सॉरी ये भी प्लस चार्ज है, सॉरी दिस इज ऑल्सो प्लस चार्ज। तो इतना होगा। यहाँ फोर्स क्या होगा, आप चार्ज से गुणा कर देते हैं Q इंटू ई यानी Q इंटू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इस डायरेक्शन में फोर्स उतना ही लगेगा Q P दिस इज फोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। सो नेट फ्लो फोर्स है हमारा इन दोनों चार्ज पे कितना लग रहा है, वो है 2F। और न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ से इस डायपोल मोमेंट में भी 2P फोर्स लगेगा, सॉरी 2F लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शंस में, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि ये डायपोल इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा तो ये जो चार्ज है दोनों उसको अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा, जिसका वैल्यू होगा 2F होगा, क्योंकि ये 2F जो आप देख रहे हैं इतना है, लेकिन ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, हम लोग देख रहे हैं डायपोल और चार्ज के बीच फोर्स का इंटरेक्शन कैसे होगा, एक दूसरे पे चार्ज कैसे लगाएगा। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि एक मटेरियल्स है, ये मटेरियल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें बहुत सारा पोलराइजेशन हो जाएगा, ढेर सारा हमको डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर या इसके बाहर क्या होगा, तो हम लोग इन सब चीजों को पढ़ने के लिए कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, ताकि देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, ये इसका आवाज सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होगा पोलराइजेशन, ये हम लोग ये देखेंगे। ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। और फील्ड हमारा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है जो फील्ड है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो इस तरह से, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है चेंज नहीं हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज, सॉरी चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और टाइम के साथ इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हम देखेंगे कि जब इस मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, और इस मटेरियल का हम लोग डिफाइन करेंगे कैसा मटेरियल्स है, और हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो ये पृष्ठभूमि जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक धरातल जिसके थ्रू हम लोग
आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि चार्ज और डायपोल में कितना फोर्स लगेगा और वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शंस कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे। ओके, हम लोग देख सकते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल at some general point, ये हमारा जो अरेंजमेंट है फिर से हम इसे देख सकते हैं। ये माइनस क्यू है और प्लस क्यू है और दोनों के बीच डिस्टेंस काफी कम है, पर हम लोगों ने इसे ड्रॉ किया ताकि हम ब्लैक बोर्ड पर जिस तरह से समझ सकें। ये एल है पर ये दूरी बहुत ही कम होती है। ओके, सो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है और ये हमारा एक्सियल लाइन है। इसे हम वाई एक्सिस कर सकते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस कर सकते हैं। पर अब हम लोग कुछ खास डिस्टेंस पे, कुछ एंगल पे, और ये आर थीटा है, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ई नेट ये हमारा क्या होगा नाउ। अब हम लोग इस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, आप इसे यहां देख सकते हैं, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये दूरी हमारा एल था, सॉरी ये दूरी एल है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो हम ये जो हमारा पॉइंट है ये थीटा मान लेते हैं, इसका आर और थीटा जो है, आर यहाँ से इस पॉइंट से दूरी है। तो हम लोग इस लाइन के अलोंग और लाइन के परपेंडिकुलर दो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। ओके, आप इसे P2 कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट को P1 कर सकते हैं। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया और P2 बराबर हमारा हो जाएगा P cos 90 माइनस थीटा। सो हमारे पास है P sin थीटा, P2 बराबर P sin थीटा। और इसकी इस डायरेक्शन R के लॉन्ग जो हमारा डायपोल मोमेंट P1 है वो है P, इसके जो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो P cos थीटा, P1 बराबर P cos थीटा। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने क्या किया कि ये वेक्टर है, इसे हम दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एक इस जो R के परपेंडिकुलर और एक R के लॉन्ग। सो हम लोग जो फॉर्मूला अभी हम डिडक्ट किए हैं कि किसी एक्सियल लाइन के लॉन्ग और डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके अनुसार हम इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल देंगे। हाँ, आप ये देख सकते हैं ये एक्सियल लाइन है, आप इसे 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मान सकते हैं इस पॉइंट पे। और हम लोग जानते हैं कि जो ये डायपोल मोमेंट के लॉन्ग जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में होता है, इसे हम E1 मान सकते हैं। और E1 बराबर क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो P cos थीटा यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं P cos थीटा P1, आप इसे P1 लिख सकते हैं 2P1 by 4 pi epsilon naught R3। ओके, और ये देखिए परपेंडिकुलर है, इसके एंटी पैरेलल हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जो क्या होगा P2 by 4 pi epsilon naught R3। आप यहाँ पे P1 की जगह पे P cos थीटा लिख सकते हैं, P2 P cos थीटा 4 pi epsilon naught R3।
आप यहाँ पे P2 की जगह पे लिख सकते हैं P sin थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका डायरेक्शंस ये है। ओके, अब देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हो गया वो आप लिख सकते हैं वेक्टर रूल्स के अनुसार E1 होल स्क्वायर इंटू E2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2p cos थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। ये जो आएगा आप p 4 पाई इप्सिलॉन r क्यूब को बाहर कर सकते हैं, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 4 cos, आप लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 का होल स्क्वायर 4 एंड cos स्क्वायर थीटा। नाउ आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं इसका 4 पाई इप्सिलॉन r क्यूब, और आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो वी हैव 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इन फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। आप देख सकते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाला है वो किस फंक्शंस में है, r क्यूब के फंक्शंस में है और थीटा के फंक्शंस में भी है। अब r बराबर 0 पुट करते हैं, r बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यदि हम r बराबर 0 पुट करते हैं सॉरी थीटा बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारा एक्सियल लाइंस हो जाएगा और वो हमारे पास हो जाएगा 2 1 प्लस 3 दैट इज 2p 4 पाई इप्सिलॉन r क्यूब। ओके, तो आप ये देख रहे थे अरेंजमेंट दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस इस तरह से था r और थीटा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से था, आप इसे ले सकते हैं r एंड थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, और ये जो डायपोल मोमेंट था इधर P1 P2 और ये P और ये थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था आप मान सकते हैं E2 और इधर E1। तो ये जो डायरेक्शंस है जो E1 आप ये फाई जो ई नेट है जो कितना होगा, देन tan फाई आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं E2 बाई E1, tan फाई नथिंग बट E2 बाई E1, सो E2 बाई E1, सो वी हैव P sin थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब E1 है जो P cos थीटा है, 2 गुना होता है, अब 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो हमारा tan जो फाई है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 से जो एंगल बनाएगा वो हमारा हाफ, दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट, P इज कैंसिल आउट हाफ tan थीटा। ओके, so this is relationship, this angle and angle, this angle, okay, you understand this angle and you also understand this angle, so both put a relationship like this, tan phi equal to half of tan theta। okay, अब इस रिजल्ट पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं।
देख सकते हैं ये डायग्राम है, दिस इज y o x, ये वेक्टर r है और ये थीटा है, और इस डायरेक्शंस में हमारा डायपोल मोमेंट है, और इस पॉइंट पे हमारा E है, ये पॉइंट P है. सो एंड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल having moment P is placed at origin O here such that its equator इज वाई एक्सिस. मतलब इसका इक्वेटर जो है ये वाई एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है. ओके, पॉइंट P है, ये पॉइंट P लोकेटेड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम the origin. Find the angular position of P, यानी value of this theta, and magnitude of electric field at P, magnitude of electric field at P. Okay, this is question. आप देख सकते हैं, डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है, और हम लोग देख सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे इस डायरेक्शंस में है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शंस देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शंस में है, ये दे दिया गया है, ये डायपोल मोमेंट P है, तो आपको एंगल थीटा फाइंड करना है. ओके, ये आपका क्वेश्चन है, एंड दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, आप रिजल्ट जब देखे हैं कि ये जो फाई है, जो हम लोग देखे थे कि जब रेडियल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमारे पास इस पॉइंट पे और इसके जो परपेंडिकुलर था E1 एंड E2, तो हम लोग रिजल्ट जो देखे थे ये हमारा क्या था, tan फाई जो था हमारा, ये एंगल रिजल्टेंट जो E1 से जो एंगल बना रहा था, ये रिजल्टेंट है, ये E1 से एंगल बना रहा था, उसको जो हम tan लिए थे वो हमारा था हाफ tan थीटा. ओके, और आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के थ्रू ये एंगल थीटा है, और ये हॉरिजॉन्टल है. आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी ये एक्स एक्सिस से पैरेलल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये हम लोग इसके पैरेलल खींचे हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, देन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन वी हैव tan फाई इज नथिंग बट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा. So we have cot theta 2 is equal to tan theta. So we have tan square theta is equal to 2. Then tan theta is equal to root 2. Okay, so theta is nothing but tan inverse root 2. This is your answer. Now we have to find electric field. आप ये एंगल निकाल लिए हैं, R है,
तो अब आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर क्यू 1+3 cos स्क्वायर थीटा। एंड जब हमारे पास tan थीटा बराबर √2 है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 है, P ये P है, ये B है, तो हमारा H कितना हो जाएगा 1/√3। दिस इज योर cos थीटा। आप इसे cos थीटा यहाँ पुट कर सकते हैं, आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल गया। दिस इज नथिंग बट 1+3 इंटू 1/3 सॉरी √1/√3 का होल स्क्वायर। And this is your electric field, net electric field. Okay. But what will happen? Question. जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। ओके, इसमें टर्म लगेगा, इस पे कितना एनर्जी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, दोनों कंडीशन देखेंगे और इसमें कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एनालिसिस करेंगे हम लोग। वो सारा चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।